یہ المعروف ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت چل رہا ہے۔ یہ لڑکیوں کا مدھوبنی میں ایک منفرد ادارہ ہے جس میں لڑکیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کیمرہ مین بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساری بچیاں بالکل تہذیب میں پردے میں ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں سماج میں ایک اچھا میسج آئے گا۔ جی، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو مسلم بچیاں جو ہے بے پردہ رہتی ہیں اور بے پردہ رہنے کی وجہ سے جو ہے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، اس سے بچا جا سکے، کیونکہ دینی تعلیم ضروری ہے۔ اگر دینی تعلیم رہے تو ان سب کا لحاظ ضروری۔ کیا پڑھایا جاتا ہے یہاں؟ مومن کا دیا اسلامی عقیدہ۔ پتا چل رہا ہے کہ انگلش کا بھی پڑھائی ہوتا ہے، کمپیوٹر کا بھی پڑھائی ہوتا ہے۔ زیادہ ہوتا ہے پریکٹیکلی، اتنا جو ہے سننے اور سنانے سے جو ہے نہیں ہے، اس سے اچھا پیغام جا رہا ہے۔ ہماری ٹیم موجود ہے بھوارہ گوا پوکھر میں۔ گوا پوکھر میں ایک مدرسہ چل رہا ہے جس کا نام ہے جامعہ جیب النساء لیل بنات، جو کہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے۔ یہاں پہ فری آف کاسٹ لڑکیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں فری ایجوکیشن، کمپیوٹر ایجوکیشن، انگلش گرامر، ساتھ ہی ساتھ جو بنگال کا سلیبس ہے اس کے اکارڈنگ دینی اور دنیاوی تعلیمات دیا جا رہا ہے۔ آئیے یہاں پہ بچوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقہ کے منصے کو لے کر وہ پڑھائی کرنے جا رہے ہیں اور اس مدرسے کی کیا ایم ہے۔ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے دینی تعلیم دیا جا رہا ہے بچوں کو۔ کچھ بچیاں ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقہ سے وہ ایجوکیشن لے رہی ہے۔ کیا نام ہوا آپ کا؟ طوبہ خاتون۔ اچھا، آپ یہاں پہ کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں؟ وہی 1.5 مہینہ سے پڑھ۔ کیا کیا پڑھایا جاتا ہے یہاں؟ مومن کا دیا اسلامی عقیدہ، چمن اسلام۔ یہ دینی تعلیمات دی جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ انگلش کا بھی پڑھائی ہوتا ہے، کمپیوٹر کا بھی پڑھائی ہوتا ہے۔ جی ہاں، پڑھائی ہوتا ہے۔ کون کون سا؟ ہندی، انگلش، میتھ۔ ہاں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ نکت خاتون۔ کیا پڑھتے ہیں آپ یہاں؟ ہندی، انگلش، اردو، میتھ۔ اور ایمان کے تعلق سے جو نقاط جو بیان کیے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کہ اقرار، اعتقاد اور قلب۔ ایک دوسری ککشا ہے جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ترتیب کے ساتھ بچیوں کے لیے ایجوکیشن دیا جا رہا ہے۔ کچھ بچیاں ہیں یہاں پر، ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقہ سے آج بھارت میں جو ہمیں ایجوکیشن چاہیے، مسلمان اب پیچھے نہیں ہیں، مسلمان کی لڑکیاں اب ایجوکیشن میں پیچھے نہیں رہے گی۔ اس کے لیے چاہے وہ ایجوکیشن کے معاملے میں کمپیوٹر کی ایجوکیشن ہو، انگلش کی ایجوکیشن ہو، میتھ سائنس کوئی بھی سبجیکٹ ہو، ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے اردو اور عربی سبھی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ کیا نام ہوا آپ کا؟ سعدیہ پروین۔ کتنے سالوں سے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں؟ 1 سال سے۔ 1 سال سے۔ کس کلاس میں ہے؟ عربی اول میں۔ عربی اول میں۔ اچھا بتائیے، آپ دنیاوی تعلیم اردو عربی کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا سب یہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے؟ انگلش، میتھ، ٹرانسلیشن، گرامر اور بہت سے۔ کسی بھی طرح کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے؟ نہیں۔ فری ایجوکیشن ہے؟ ہاں۔ دیکھ سکتے ہیں کیسی مثال یہاں پہ قائم کی جا رہی ہے۔ اس مہنگائی کے زمانے میں بھی خود سے جو کہ ویلفیئر، معروف ویلفیئر ٹرسٹ کے جو آرگنائزیشن کے جو ممبر ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہیڈ ہے مولانا معروف سلفی صاحب، ساتھ ہی ساتھ حافظ منظر صاحب، وہ اپنے خود کے پیسے سے بچیوں کو تعلیم فری میں ٹیچر رکھ کے اپنے پیسے سے دے کر وہ اس ایجوکیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں پہ کیا نام ہوا آپ کا سر؟ دانش عبداللہ سلفی۔ اس مدرسے کے بارے میں ہمارے درشکوں کو کچھ بتائیے۔ یہ المعروف ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت چل رہا ہے۔ یہ لڑکیوں کا مدھوبنی میں ایک منفرد ادارہ ہے جس میں لڑکیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ آپ میں دیکھ رہا ہوں کیمرہ مین بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساری بچیاں بالکل تہذیب میں پردے میں ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں سماج میں ایک اچھا میسج آئے گا۔ جی، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو مسلم بچیاں جو ہے بے پردہ رہتی ہیں اور بے پردہ رہنے کی وجہ سے جو ہے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، اس سے بچا جا سکے۔ اس کے لیے ایک قدم ہے کہ لڑکیوں کی دینی تعلیم ضروری ہے۔ اگر دینی تعلیم رہے تو ان سب کا لحاظ ہو ہی جاتا ہے۔ فی الحال یہ مدرسہ گھر میں ہی چل رہا ہے، گھر میں ہی کچھ کمرے میں چلایا جا رہا ہے۔ اس مدرسے کے لیے بڑے پیمانے پر بلڈنگ کی تعمیر کی جا رہی ہے۔
जो कि हम इस वीडियो के दूसरे भाग में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हाफिजाबाद जो कि गोवा पोखर के बिस्मिल्लाह कब्रिस्तान कहते हैं कि यहां पर बच्चियों के एजुकेशन के लिए मेल टीचर के साथ साथ फीमेल टीचर भी है। एक टीचर यहां पे भी फिलहाल बच्चियों को पढ़ा रही है और आपने देखा है कि दूसरे क्लास में भी एक शिक्षिका पढ़ा रही थी। देख सकते हैं कि जिस तरीका से बिहार में बेरोजगारी बुरी तरीका से बढ़ रही है, लड़की एजुकेशन में पीछे जो चल रही थी उसी को आगे बढ़ाने के लिए एक मिसाल मदरसा जैबुन्निसा में देखने को मिल रहा है। हमारी लड़कियां अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, चाहे वो यूपी का मदरसा हो, इंडिया के किसी भी स्टेट का मदरसा हो, वहां जाने की अब जरूरत नहीं है। घर रहकर मधुबनी में भी दीनी तालीमात के साथ साथ वे दुनियावी तालीम हासिल कर सकती है। कुछ मुदर्रिस हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एम चल रहा है इस मदरसे को लेकर और कितना बड़ा प्लानिंग है पूरे बिहार भर में, और साथ ही साथ ये जो वेलफेयर ट्रस्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या क्या इसमें बातें हैं। आइए यहाँ के कुछ इस मदरसे के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तारीफ पूरी तरीके से इस मदरसे का है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मंजर आलम है जी। इस मदरसा की तारीख ये है कि 2001 जनवरी को इसका बुनियाद हम लोग डाले थे और अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन अल्लाह ने तरक्की की इसमें। और ये कह लीजिए कि उस मदरसा का हमने ख्वाब देखा था जी। यहाँ पर कम से कम जो है हिफ्स का बेहतरीन इंतज़ाम हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा यहाँ पढ़े। वहाँ कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान के बगल में तालाब भी है, बच्चे सैराब भी हो। अल्लाह का फजल व करम से कम दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2001 जनवरी से 23 साल ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बच्चे हाफिज बन के निकले। इस वक्त कम से कम 150 या 200 बच्चे हाफिज बन गए। हमारी टीम वहां जाएगी जो कि हाफिजाबाद गोवा पोखर में है, बिस्मिल्लाह कब्रिस्तान के पास। सेकंड पार्ट जो आएगा इस वीडियो का उसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये लड़कियों के लिए जो मदरसा बनात चल रहा है उसके ऊपर कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, यहाँ तक कि काजी हबीबुल्लाह साहब मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, तो सब आते थे कब्रिस्तान में तो कहते थे मौलाना अब्दुल्ला साहब ये देखते हैं हमारे हाफिज़ सग़ीर मदनी वगैरह कि भाई इस इलाका में लड़कियों का कोई मदरसा नहीं है जी। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तीनों भाई मिल करके कमर बांधा। अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ताला जो यहाँ तक पहुँचाया कि इस वक्त जो है लगभग 84 या 85 बच्चियाँ पढ़ रही है, आलिमा बन रही है 4 साल से। और उसके बाद बहुत मजबूती के साथ जामिया ज़ैबुन्निसा लिल बनात का हम लोगों ने बुनियाद डाली। अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी बरकत अल्लाह उसमें दिया और दुआ कीजिए कि पाए तकमील तक उसको हम लोगों को पहुँचा दें। अच्छा ये बताइए, दुनियावी तालीम तो दी जा रही है, बच्चियां आलिमा बन रही है, हाफिज बन रही है जी जी। क्या इस मदरसे के अंदर दुनियावी तालीम जो है इंग्लिश मैथ्स इस तरह की कोई कंप्यूटर इस तरह की तालीमात दी जा रही है? सब दी जा रही है, सब दी जा रही है। और हम लोग आगे ये है कंप्यूटर नमाज की जगह प्लस वो हॉस्टल, उसके बाद हम लोग स्कूल भी कायम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फजल कर मरकज़ तहफ़ीज़ुल कुरान के बगल में जितनी ज़मीनें हैं सब हमारी अपनी है, ज़ाती ज़मीन। अल्लाह का फजल करम है, किसी से पूछना भी नहीं है। जहाँ तक जा सके, यहाँ तक कि धोबियारी तक आप लोग जाते हैं, लेकिन मैथ, इंग्लिश, साइंस, तवारीख़, जोग्राफिया वगैरह सब पढ़ाई होती है। ये अल्लाह का फजल है और इंशाअल्लाह आगे भी देखिए अल्लाह ताला का। कहीं ना कहीं बच्चियां यहाँ से पढ़कर हाफिज मौलवी ही नहीं नहीं भी क्रैक कर सकती है। एकदम बिल्कुल हम लोग शाहीन बेदर से भी रब्ता कायम करेंगे इंशाल्लाह। उसका ब्रांच भी यहाँ खोलने का मेरा इरादा है। शाहीन बेदर समझ रहे हैं, बेंगलोर का जो है शाहीन एकेडमी, शाहीन बेदर बेंगलोर जो नीट की तैयारी करवाते हैं। 1000 से ज्यादा कम से कम वहाँ डॉक्टर बन चुके हैं सिर्फ हाफिज कुरान। वो मेरे यहाँ इंशाल्लाह वो सेंटर हम कायम करना चाहते हैं अल्लाह के फजल करम से। बस सबों की दुआ अगर रही तो इंशाल्लाह रहमान आगे इंशाल्लाह हम लोग बढ़ते जाएंगे और आप लोग दुआ देते रहेंगे। देखिए जी, जो मेंबर हैं साथ ही साथ कहिए ऑल इन ऑल इस मदरसे के जो गार्जियन हैं, तीनों भाई हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे इसके बारे में। क्या नाम हुआ आपका हजरत? मोहम्मद अमीर हमजा। क्या कहेंगे इस मदरसे के बारे में हमारे आवाम को? माना यह है कि हम लोगों की भरपूर कोशिश है अल्लाह जहाँ तक इसको फ़रोग़ दे दे जी। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हो यहाँ हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं।
और बच्चियाँ भी बड़े शौक बड़े अरमान से पढ़ रही हैं और इंशाअल्लाह हमको काफ़ी उम्मीद है अल्लाह से कि सब लड़कियाँ पढ़ करके निकल जाएंगी। दीनी तालीम भी है और इसके अलावा असली तालीम भी दी जा रही है। अब भरपूर लोग और लड़कियाँ मेहनत भी कर रही हैं और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसके अंदर चार चांद लगा दे। क्या लगता है आपको आजकल ये जो एजुकेशन सिर्फ अब बिजनेस का हब बन चुका है, अड्डा बन चुका है, लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए एजुकेशन को गलत रास्ते में ले जा रहे हैं। आप लोग फ्री में बच्चियों को तालीम दे रहे हैं, अपने पैसे से ही जो टीचर रखे हैं आप लोगों ने, क्या लगता है इसमें आप लोगों ने क्या मनसा बना के इतना बड़ा कदम उठाया? हम आप लोग अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जितनी वसत हम लोगों को दे दे उसी हिसाब से इन लोगों को हम तालीम देते हैं, अपने पैसे से तालीम दिलवाए इन लोगों को। और जरूरत नहीं है कि ये वो दे ये लाभे उधर से लाभे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब तालीम हो रही है, इंशाल्लाह तालीम होगी। तो ये थे इस मदरसे के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और जो भी कमेटी के मेंबर हैं वो लोग थे, उनसे हम आप लोगों को बताने की कोशिश हमारी टीम ने की। इस मदरसे का जो दूसरा भाग है, जो मेन कह सकते हैं, जहाँ पे लड़कों की तालीम दी जा रही है, साथ ही साथ वहाँ पे एक हॉस्टल बनाया जा रहा है, बिल्डिंग का तामीर चल रहा है काम, हम दूसरे वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे कितनी बड़ी होता है प्रैक्टिकली उतना जो है सुनने और सुनाने से जो है नहीं है, इससे अच्छा पैगाम जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस मदरसे के अंदर कितनी सारी बातें आपको देखने को मिली। लड़कियां अब सिर्फ चूल्हा चौका ही में नहीं रहेगी, वे उनके अंदर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शैक्षणिक विकास, साथ ही साथ सार्वभौमिक विकास होगा, जो कि लड़कियां अब एक जो प्रथा चला आ रहा है लड़कियों को सिर्फ घर के अंदर कैद रखने का, वो नहीं होगा। लड़कियां अब गांव में भी मदरसे में आकर अपनी तालीम ले सकती है और अपने अच्छे भविष्य को भी वो बना सकती है। इस तरह की और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज।